जर्मनी टू पाकिस्तान, पाकिस्तान टू इंडिया, सऊदी अरेबिया, ओमान और कहाँ कहाँ। बैंगलोर के लिए लोग तो आपको यार इतने मैसेज बैंगलोर से मुझे खुद हैरत हो रही कि मैं कैसे जो है ना लोगों को कहूँ कि मैं We are actually riding to Mysore. It's kind of like a special ride because I am actually going to meet a friend. He's quite famous, known for traveling all over the world on his bike. His name is Mr. Abrar, and he owns a channel and runs a channel called Wild Lens by Abrar. Plan was to meet him at late in the night, but he kind of like got delayed in some logistics, which you can watch later on his channel. He would be better to give you a lot of description. I am not completely aware of what really happened, but all I know is that there is a jungle crossing, and the jungle crossing would have been closed by the time he would have reached the location to reach Mysore. So yeah, he will probably catch up with me in the morning, and we have a couple of other plans to do, which we'll probably see further. So yeah, let's see how the ride goes, because it's gonna be fun. Time is now around 11:15, and it's gonna take us almost 2.5 hours to reach Mysore, and we will reach Mysore at 1:50, that is 2 o'clock. Probably a break or two. It shows 140 kilometers, so yeah. Well, let me first cross the Bangalore city and then catch up with you guys in a while once I'm on the highway. Well, I'll be going through the new highway. Hopefully the highway is still open it's still not open, because if it's open with the toll, then bikers are not allowed. So we're going to take a service road. It's going to take much longer. Let's see. Only time will tell. अठारहवीं सेंचुरी के एंड पे जो है टीपू सुल्तान और हैदर अली यहाँ पे आए थे, और फिर बाद में जो है वो ब्रिटिश आए थे। अभी हम चलते हैं अंदर से, आपको मैसूर पैलेस दिखाते हैं, क्योंकि मैसूर पैलेस जो है ये एक्चुअली जो है यहाँ पे So currently we are heading to Coorg. Well, we are almost there in Coorg. It's just 17 minutes away from our homestay. We do plan to explore Coorg tomorrow, and Abrar Bhai has plans of heading forward towards Bangalore, and I plan to head back to Bangalore, and probably in the future we are planning to catch up, and let's see. I mean, I don't want to read a lot of things and let Abrar Bhai do all the planning, since he has a lot of restrictions related to visa and stuff. But yeah, that's the plan for now, and apart from that, let's see how the day goes tomorrow. I think this is going to be the end of the day, and I will be continuing the same vlog tomorrow and see how things goes.
Cool. You guys can hear it's day 2 riding with Abrar bhai. We are currently in Coorg and we are planning to head towards Mandalpatti for a sunrise. We reached at around 3:30 in the night. It's 6 AM in the morning, 2 hours of sleep. We're just warming up our bikes and we'll just be heading out. I'll see what I can record and we'll see what to do from there. There's Abrar bhai. Cool. Say hi. Huh? सीधे we are going to a place called Mandalpatti, which apparently is beautiful for sunrise. The sun has already risen, but this is going to give it a try. Location says 27 minutes for 6 kilometers. Abrar bhai and Karthik is behind me. तो हम हैं अबरार भाई के साथ। इन्होंने बहुत लंबा राइड किया हुआ है, जर्मनी टू पाकिस्तान, पाकिस्तान टू इंडिया, सऊदी अरेबिया, ओमान और कहाँ। हम एक्चुअली ये अभी इंडिया आए हुए हैं, तो हमने सोचा, हमने मिला इनको, एक छोटी सी राइड की, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा मिलके। तो चलो ये थोड़े क्वेश्चंस पूछ लेते हैं कि इंडिया कैसा लगा वगैरह वगैरह। तो अबरार भाई बताइए, इंडिया के कैसा लगा आपको? बहुत शुक्रिया जी। इंडिया अभी तो हमारा आज मेरे ख्याल में छठा दिन है। हाँ, तो जैसे जैसे हम लोग और एक्सप्लोर करते जाएंगे, बताते जाएंगे। अभी तक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, स्पेशली मिडल ईस्ट से जब मैं निकला हूँ तो वहाँ पे डेजर्ट था, यहाँ पे आप पहाड़ देख रहे हैं, ग्रीनरी देख रही हैं, जंगल देख रहे हैं, ट्रैफिक का काओस देख रहे हैं जब आप सिटीज़ में इंटर होते हैं। लेकिन सिटीज़ से बाहर जो है, वो जो इंडिया की ख़ास बात है ना, कि आप जब सुबह राइड स्टार्ट करते हो ना, अगर आप सिटी से ट्रैवल करते हो, फिर आपको खूबसूरत गांव नज़र आएंगे, देहात से आप आगे निकलते हो, आप नेशनल पार्क से गुजरते हो, चेंज आ रही होती है। तो ये आई थिंक राइड के लिए, हाँ, एक वो आप होता है ना कि सुबह निकलो शाम तक एक ही सीनरी, उसमें ना बोर हो जाता है, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। अच्छा, तो मेरा अगला सवाल, आपने इतनी जगह दुनिया में घूम लिया है, वहाँ के रोड्स को और इंडिया के रोड्स को आप कंपेयर करोगे तो कौन सा बेटर है? कैसा आपको फील आ रहा है? डिफरेंट फील क्या है? यहाँ पे ड्राइविंग एक्सपीरियंस कैसा है और वहाँ पे ड्राइविंग एक्सपीरियंस कैसा है? इंडिया जो है, आप कह सकते हो कि एक अलग ही दुनिया है। इंडिया को आप बाकी दुनिया के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि मुझे एक्चुअली इस तरह के रोड्स पे ना, छोटी रोड्स होती हैं, राइड करने का मज़ा आता है। एक्सप्रेस हाईवेज बोरिंग होती हैं, क्योंकि आपको इधर उधर कुछ नज़र नहीं आ रहा होता। यहाँ पे किलोमीटर, अगर 100 किलोमीटर है तो हो सकता है कि आपके 3-4 घंटे भी लग जाए, लेकिन साइडों पे जो है ना, एक लाइफ होती है, कुछ ना कुछ चल रहा होता है। अगर आप एक गांव से भी गुजर रहे होते हैं ना,
आपको कुछ इस तरह चीज़ें नज़र आ रही होती हैं जो एज अ ट्रैवलर इंडियंस के लिए हो सकता है वो नॉर्मल हो क्योंकि वो रोज़ देखते हैं, लेकिन एज अ ट्रैवलर जब आप आते हैं तो आपको वो जो चीज़ें देखने को मिल रही होती हैं आपने वो कभी नहीं देखी होती। तो और स्पेशली आप केरला से निकले, आगे तमिलनाडु आ गए, आगे जो है कर्नाटका आ गए, तो चेंज हो रहा होता है। जैसे आप स्टेट चेंज करते हैं, लोग, कल्चर, फूड, सब कुछ चेंज हो जाता है, लैंग्वेज। तो ये एक जो चेंज और रोड्स पे आप वो सारी चीज़ें जो है ना देख रहे होते हैं, वो क्वाइट फैसिनेटिंग है एक्चुअली। ठीक है, तो हम लोग कल एक दिन से ट्रैवल कर रहे हैं साथ में, आपको इतने मैसेजेस आ रहे हैं, इतने मैसेजेस आ रहे हैं, लोग रोड पे रुका रुका के पूछ रहे हैं हम हमसे मिलना चाहते हैं, हम आपसे मिलना चाहते हैं। हम लोगों के होम स्टे में भी आज बहुत लोग आ गए थे, 2-3 लोग तो आ गए थे, 3 फैमिलीज मिलने के लिए। वो एक्सपीरियंस कैसा लग रहा है आपको? इतना लव और इतना सपोर्ट जो मिल रहा है आपको, वो कैसा लग रहा है? एक्चुअली ये जो लोगों का प्यार होता है ना, और आप जब ट्रैवल करके जाते हैं और लोग आपको डिफरेंट जगहों पे मिलते हैं, आपको वो रिस्पेक्ट और वो जो अपना आपसे वो कभी नहीं मिले होते हैं, सिर्फ आपकी उन्होंने वीडियोस देखी होती है और उन वीडियोस को देख के उन लोगों का इतना लगाव होता है कि वो 3 4 घंटे, आज जो भाई साहब मैसूर से सुबह 4 बजे निकले, एक बेंगलोर से आए हैं, तो ये चीज़ें आपको नॉर्मल, मतलब मैं एक नॉर्मल से ह्यूमन बीइंग हूँ, ट्रैवलर हूँ, यूट्यूब की वीडियोस बनाता हूँ, तो मेरे लिए ये चीज़ें सोचना, इमेजिन करना कि मुझ में क्या ख़ास बात है कि क्यों लोग आते हैं। तो बहुत शुक्रिया हम सब लोगों का जो इतना प्यार मोहब्बत दिखा रहे हैं। मैं पर्सनली चाहूँगा कि मैं लोगों से मिलूँ, वो वीडियोस बना के बाकी पाकिस्तान में और हर जगह दिखाऊँ, ताकि लोगों को पता चले कि यहाँ पे ट्रैवल करना विदाउट, मतलब हम एज ए नॉर्मल ट्रैवलर जा रहे हैं, हमारे साथ कोई सपोर्ट नहीं है, कोई कुछ नहीं है कि पीछे कोई गाड़ी है या कोई इस तरह हम ट्रैवल कर रहे हैं, एज ए नॉर्मल ट्रैवलर कर जा रहे होते हैं। तो वो जो प्यार मोहब्बत है जब आप दूसरे लोगों को दिखाओगे तो एक बहुत ही पॉजिटिव इमेज आएगा। मेरी कोशिश भी है कि जितना मैं इंडिया को अच्छी तरह एक्सप्लोर करूँ। मैं तो कहता हूँ अगर मेरे पास 6 महीने का, साल का वीज़ा, तो मैं इंडिया को इस तरह एक्सप्लोर करूँ कि शायद किसी ने ना किया हो। हाँ, क्योंकि मुझे पर्सनली जो है वो इंटरेस्ट है इस चीज़ में, हिस्ट्री में, कल्चर में, नेचर में। तो वो इंडिया जो है वो एक पूरी दुनिया है, तो इस दुनिया को एक्सप्लोर करने के लिए आपको जो है ना टाइम चाहिए, लोगों से मिलना, जहाँ पे भी आप जाएं उनका प्यार मोहब्बत आप फिर कैप्चर करें और बाकी लोगों को बैक होम आप दिखाएं, तो बहुत अच्छा लगता है। वैसे बहुत सारे मैसेजेस मेरे को भी आ रहे हैं। अबरार भाई बैंगलोर कब आ रहे हैं, अबरार भाई दिल्ली कब आ रहे हैं, अबरार भाई राजस्थान कब आ रहे हैं। इनफैक्ट मेरे को तो व्हाट्सएप पे भी मैसेजेस आने लग गए हैं रैंडम पीपल से कि भाई अबरार भाई कहाँ हैं, बताइए, लोकेशन बताइए, हम लोग आएंगे मिलने के लिए। अब ये बताइए, सबको क्लियर कर दीजिए कि भाई आप कहाँ मीटअप का प्लान एटलीस्ट कर रहे हैं जी, और क्या प्लान है? एक्चुअली बात यही है कि हम सुबह से शाम तक राइड कर रहे होते हैं, मेरे पास सिर्फ 30 डेज़ है। लोगों से मिलना हो तो आपको 4 से 5 घंटे चाहिए, क्योंकि मेरा मानना ये है कि अगर कोई बंदा अपनी ज़िंदगी में से टाइम निकाल के आपको मिलने के लिए आ रहा है ना, तो जब वो वापस जाए तो उसके दिल में आपके लिए पहले से ज़्यादा मोहब्बत होनी चाहिए। उसको ये फील नहीं होनी चाहिए कि ये तो सेलिब्रिटी है या ये पता नहीं क्या अपने आप को समझता है, हमें टाइम नहीं दे रहा। या तो आप मिलो ही मत, लेकिन अगर मिलो तो उनको प्रॉपर टाइम दो। जब वो जाएँ तो खुश होकर जाएँ कि हमने अपनी ज़िंदगी का अगर टाइम निकाल किसी बंदे को देखा है ना, तो वो हमने वेस्ट नहीं किया। अब मेरे लिए मुश्किल है कि मैं कहाँ पे मीटअप करूँ, क्योंकि मैं एज अ फॉरेनर आया हूँ, मुझे नहीं पता कि यहाँ के लॉज एंड रेगुलेशंस किस तरह की हैं और वो परमिशन कहाँ से मिलेगी। अब उस परमिशन के चक्कर में, और मैं चाहता हूँ क्योंकि यहाँ पे जो लोग हैं, मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मैं इंडिया को एक्सप्लोर करके वापस जाऊँ, वो वीडियोस बना के जो पूरी दुनिया में जहाँ से भी लोग देखते हैं उनको दिखाऊँ इन लोगों से। और होपफुली कि मे भी मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर, हैदराबाद, कुछ जगहों पे जो छोटी सिटीज़ है ना, उनमें मुझे मसला नहीं है, वो मैं जाते जाते स्टोरीज़ लगा के उनसे मिलूँगा। बड़ी सिटीज़ में वो हजूम इकट्ठा हो जाए ना, वो मेरे लिए मसला बन सकता है। तो अगर तो कोई ब्रांड या कोई बंदा, मैं किसी से कोई पैसे नहीं लूँगा, कुछ नहीं लूँगा, मीटअप अरेंज करें, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ संभालें, मैं जाके लोगों से मिल लूँगा। ओके, तो लेट्स होपफुली दिल्ली में मैं करना चाहूँगा, क्योंकि दिल्ली जो है वो हमेशा से, हम लाहौर के करीब रहने वाले हैं। दिल्ली ऐसा है कि जिस तरह आपका सेकंड को एक होम आप समझते हैं ना, वो कभी ख्वाहिश होती है कि लाहौर में ब्रेकफास्ट करे और दिल्ली में बंदा जाके ना डिनर करे। अच्छा, सही है। फिर अभी आपके पास 30 डेज़ का वीज़ा है,
जाने वाले हैं आप वापस 30 डेज़ में। मेरे को डेट्स पता है बट मैं बताऊंगा नहीं। बट जाने के बाद वापस कब फिर? क्योंकि आपके जैसे मैं subscribers- वापस जाऊंगा ना तो इंशाल्लाह कोशिश होगी कि बहुत जल्दी जो है सेकंड वीज़े के लिए अप्लाई करूँ। मेरा पर्सनल प्लान ये है कि अगर मुझे सेकंड वीज़ा मिलता है 3 से 6 महीने का, तो मैं ये साल जो है उसमें मोस्टली जो है मैं इंडिया में, नेपाल में, बांग्लादेश में और पाकिस्तान के नॉर्थ में ना इन कंट्रीज़ को अच्छी तरह एक्सप्लोर करके ये सब कॉन्टिनेंट ना मोस्टली यहाँ से लोग मुझे देखते हैं, और अगर बाहर से भी देखते हैं तो वो मोस्टली जो है वो हिंदी उर्दू स्पीकिंग ही होते हैं। तो उन लोगों को ये रीजन जो है वो अच्छी तरह एक्सप्लोर करके दिखाऊँ, तो एक थोड़ा सा सॉफ्ट इमेज जो है वो जाएगा। चलिए अब्रार भाई, थैंक यू बहुत सो मच शुक्रिया। फॉर राइडिंग विथ मी। बहुत अच्छा लगा, और बहुत अच्छा hopefully लगा आपसे। ज़िंदगी में दोबारा कभी मौका मिलेगा for आपके sure। साथ राइड करने का, और मैं बेंगलोर ज़रूर आऊँगा इंशाल्लाह। बैंगलोर के लिए लोग तो आपको यार इतने मैसेज बेंगलोर से मुझे खुद हैरत हो रही कि मैं कैसे जो है ना लोगों को कहूँ कि मैं अब हो सकता है इस ट्रिप में भी मैं एक दिन फ्लाइट लेके जाऊँ, अगर कोई बंदा वहाँ पे मीटअप अरेंज कर लेता हम हैं, तो कुछ मैं करेंगे जुगाड़। जाऊँगा मिल के लोगों को फ्लाइट लेके वापस आ सही है इंशाल्लाह। चलिए फिर मिलते हैं फिर। जाऊँ इंशाल्लाह। चलिए, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़। चलो तो हम लोग भी गए थे मंडल पट्टी, having a good sunrise time. We had been there, spent some good time with Abhay, and we are heading back to Bangalore. I'm heading back to Bangalore. Abhay has some different plans, and he'll be riding forward, and I'll be probably heading back to Bangalore, and we'll see how it goes. I think we plan to stop somewhere for a chai or something, and then Abhay will continue towards his journey, and I'll continue towards mine. Cool.